everyone, welcome to our channel IVLegal. In our today's video, we are going to discuss about section 25 of Indian Evidence Act. Section 25 किस बारे में बात करता है कि confession made to a police officer cannot be proved against the person making the confession. सिंपल से ये बोलता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने आप कुछ भी कन्फेस करोगे that is not admissible क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर is not entitled to record the confessional statement. Who is entitled to record the confessional statement? Is magistrate under section 164 of CRPC. तो पुलिस के ऑफिसर के पास आप कुछ भी कन्फेशन स्टेटमेंट दो, डेट इज नॉट एडमिसिबल, ये सेक्शन बताता है. अब कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इधर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑल आर इनएडमिसिबल. जनरल रूल क्या है कि एनी नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. दिस इज द जनरल रूल कि पुलिस ऑफिसर के सामने आप कुछ भी बोल रहे हो, all those statements are not treated as confession, and even if they are treated as confession, they cannot be proved against the person accused because they are made before the police officer. अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की क्योंकि बात वर्ड को सेक्शन क्या वर्ड यूज कर रहा है, पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर कौन होता है ये हमको समझना पड़ेगा. तो पुलिस ऑफिसर बेसिकली ये although the person who are police officer are as follows कि unless and until a person has power to make investigation and frame charges against the accused under section 173 of CRPC, he cannot be called as a police officer under this section, under section 25. दो कौन सी पावर होनी चाहिए? पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड पावर टू फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC. देन ओनली अ पर्सन इज टू बी कॉल्ड एज पुलिस ऑफिसर. अब एक केस आया था कि बदाकू ज्योति वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. बदाकू ज्योति वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में ये हुआ कि देयर वाज अ सेंट्रल एक्सरसाइज ऑफिसर who has the powers of police officer for investigating but did not has the power to frame charges against the accused person as under section 173 of CRPC. So it was held that he is not a police officer for the purpose of section 25, for the purpose of this section. Reason being कि उसके पास investigating power तो है but he does not have the second thing, that is to frame charges against the accused under section 173 of CRPC. And that's why in this case it was held that central excise officer though has the power of investigation, but since it does not have the power of framing the charges against the accused, will not be called as a police officer under section 125, under section 25 of Indian Evidence Act. अब एक और चीज जो सेक्शन में ध्यान रखने वाली है वो ये है कि if the confession is made to a police officer by a person when he is not accused of that offense, the said confession becomes inadmissible against him when he becomes the accused of that offense. आप जब अक्यूज नहीं थे उस ऑफेंस के तब आपने कन्फेशन दिया पुलिस ऑफिसर के पास, दैट कन्फेशन बिकम्स इनएडमिसिबल व्हेन यू लेटर बिकम द अक्यूज्ड ऑफ दैट ऑफेंस. कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज अब एक कोई कहीं मर्डर कमिट हुआ है, ठीक है, और पुलिस ऑफिसर वेंट टू इन्वेस्टिगेट द केस, और एक्स एक बंदा है, एक पर्सन है जो आता है और बोलता है कि एक्स कम्स टू पुलिस ऑफिसर एंड सेज दैट यस आई हैव कन्फेसेस दैट आई हैव कमिटेड दिस मर्डर. लेटर ऑन ही वाज अरेस्टेड एंड ट्राइड एज अक्यूज्ड. नाउ the confession was, अब यहाँ पर X ने जब ये confession दिया उस समय X was not accused, but later on when he was tried as an accused, the confession which he made when he was not accused is inadmissible as per this section. ये held हुआ था in the case of A. Nageshiya versus State of Bihar कि if the confession is made by police officer to a person when he is not accused of any offense, it is inadmissible against him when he becomes accused of that offense. Later वो अगर accused हो भी जाता है तो वो जो confession उसने जब वो accused नहीं था तब दिया था, that is also inadmissible. क्योंकि वरना आप यही बोलेंगे कि सेक्शन तो सिर्फ इतना बता रहा है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई accused है तो अगर accused कुछ दे रहा है स्टेटमेंट, that is not admissible. बट अगर वो accused नहीं है, उसके पहले उसने कुछ स्टेटमेंट दिया, उसके पहले कुछ confession दिया, तो वो तो admissible होगा. तो पुलिस कभी ये क्लेम ना करे, इसीलिए ये क्लियर कर दिया इन दिस केस कि आप अक्यूज होने से पहले कुछ कन्फेशन देते हो और आप बाद में अक्यूज बन जाते हो उस ऑफेंस को लेके, तो इन दैट केस द कन्फेशन गिवन एट द टाइम व्हेन यू आर नॉट अक्यूज्ड आर आल्सो इनएडमिसिबल. उसके बाद आता है एक और केस, नासिर अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट कि द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट कन्फेशन इज नॉट एक्सक्लूडेड बाय सेक्शन 25. मतलब सेक्शन 25 सिर्फ उन कन्फेशंस को इनएडमिसिबल करता है, उन स्टेटमेंट्स को इनएडमिसिबल करता है जो कन्फेशन है. अगर वो कन्फेशन नहीं है देन दे आर एडमिसिबल. तो मतलब यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन जरूरी है कि व्हाट स्टेटमेंट अमाउंट्स टू कन्फेशन एंड व्हाट स्टेटमेंट इज अ मियर स्टेटमेंट, इज अ मियर एडमिशन एंड नॉट अ कन्फेशन. तो अगर कुछ मियर एडमिशन है देन दैट इज रेलेवेंट, दैट वुड बी एडमिसिबल इवन दो इट इज मेड टू पुलिस ऑफिसर. बट अगर कोई कन्फेशन है दैट वुड नॉट बी एडमिसिबल बिकॉज इट इज मेड टू पुलिस ऑफिसर एंड हेंस दैट इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 25. तो इसीलिए द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट कन्फेशन
cannot be excluded under section 25. For a statement to be excluded under section 25, it must be a confession. अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं सपोज पुलिस ऑफिसर के पास जाके बोलता हूं कि मैंने एक्स को चाकू से मारा है और वो चाकू मैंने मेरे घर की छत पे छुपा के रखा है. नाउ देयर आर टू स्टेटमेंट्स हियर. मैंने एक्स को मारा चाकू से और वो चाकू मैंने घर की छत पे छुपा के रखा है. इट इज ऑन माई टेरेस. ठीक है, तो अब वो टेरेस पे मैंने छुपा के रखा है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि मैंने चाकू टेरेस पे छुपा के रखा है इज अ एडमिशन, इज अ एडमिसिबल फैक्ट. बट जो स्टेटमेंट है कि मैंने चाकू से एक्स को मारा है इज अ कन्फेशन. तो कन्फेशन विल नॉट बी एडमिसिबल, बट द स्टेटमेंट कि मैंने उस चाकू को छत पे छुपा के रखा है इज अ एडमिसिबल फैक्ट, and that fact would not be excluded under section 25 and would be admissible even though it's made to police officer, but it will be admissible. Reason being कि it is not a confession, it is an admission of certain fact कि मैंने चाकू वहां पे छुपा के रखा है. कन्फेशन क्या होता है? जहां पे तो आप अपने गिल्ट को प्रूव करते हो. तो वो गिल्ट कहां पे प्रूव हो रहा है? कौन से स्टेटमेंट के पार्ट पे कि मैंने एक्स को मारा चाकू से. तो दैट इज नॉट एडमिसिबल एज पर सेक्शन 25. बट वो चाकू मैंने छत पे छुपा के रखा है is admissible because that is not excluded, because that is not confession, so is not excluded under section 25. तो यही केस बोलता है, केस ऑफ फदी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. ये बताता है कि admission of certain facts on the basis of which certain questions are to be determined by court, it becomes relevant and admissible against the person making it. कि अगर आप कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं which are admission of certain facts, कि हाँ वो फैक्ट, यहाँ पे क्या फैक्ट है कि फैक्ट दैट चाकू मैंने छत पे छुपा के रखा है is admission of certain fact. This fact is necessary for the court to determine the actual question, the relevant question, and hence this admission of fact becomes relevant and is admissible against the person who is making it. जनरल रूल क्या था कि आप कुछ भी पुलिस ऑफिसर के सामने बोलो, that is not admissible against the person, but कुछ भी नहीं है यहाँ पे. The section speaks that confession made before police officer is not admissible and cannot be used against the person. बट अगर कोई स्टेटमेंट है जो कन्फेशन नहीं है, दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, इवन इफ द पर्सन मेक्स इट बिफोर द पुलिस ऑफिसर. और पुलिस ऑफिसर कौन है? द पर्सन हु हैज टू पावर्स, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फ्रेमिंग चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी. दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. और आपको वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स. गुड बाय, थैंक यू.